हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम करवाऊंगी और उस प्रॉब्लम में नया क्या रहेगा? नया रहेगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाना। अभी तक आप लोगों ने बनाया प्रोसेसेस अकाउंट, दैट इज प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। ये मैंने सिखाया है। आप लोगों को नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना सिखाया है। आप लोगों को सिखाया एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट भी कैलकुलेट करना। लेकिन आज के क्वेश्चन में जो नया रहेगा, वो जो नया चीज आपको हम पढ़ाएंगे, that will be how to prepare abnormal loss account and abnormal gain account. So we'll be doing a question. The question states a product passes through three distinct processes: process A, process B, process C. In the question, it is given input, different expenses are given, normal wastage is given, and it is mentioned in the question normal wastage is sold as scrap. And here it is mentioned that 10,000 units were issued to process A, and the rate of 1 unit is how much? It is ₹1. So, and in the question it is stating that you have to prepare process A account, process B account, process C account, and the new thing which you have to prepare is abnormal loss account and abnormal gain account. So first we'll be preparing process A, that is a product passes through three processes A, B and C. So we'll be starting with process A. Now the format will remain the same: particular unit amount, particular unit amount. The first thing which we are going to write in process A account, it will be the input which has been introduced. So on the debit side, to input, how many units are introduced? 10,000 units are introduced, and rate of 1 unit is how much? Rate of 1 unit is ₹1. So of 10,000 units, it will be how much? 10,000 into 1, that is 10,000. Now the other expenses given in this question are material, to labor, and it is to direct expenses. Material given in this question is 1,000, labor is 5,000, and direct expenses 1,050. We have posted all the items which should appear on the debit side of process account. Now in the question it is stating that abnormal loss in process A is how much? Abnormal loss in process A is 3%. So we are going to write by normal loss. Sorry, I said abnormal loss. It is normal loss. It is how much? It is 3% of input. 3% of input means input is how much? Input is 10,000 units. So 3% of 10,000 is how much? It is 300 units. Now we have filled the unit column. Now it is the time to fill the amount column. That is amount column we are going to calculate. In the question it is stated that the normal wastage is sold at 25 paise per unit. In the question it is given that the normal wastage, see over here, it is given that normal wastage is sold at 25 paise per unit. That is, एक यूनिट अगर आप एज स्क्रैप सेल कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है? आपको मिल रहा है 25 पैसे. फॉर 1 यूनिट यू आर गेटिंग 25 पैसे. सो फॉर 300 यूनिट्स you will get 300 into 25 paise. That is how much it will be? It will be 75. It will be 75. 300 into 25 paise is how much? It is 75. So we will be writing over here, it will be 75 rupees. Now in the question it is stating that output of process A, output of process, the output given in process A is how much? It is 9,300 units. It is 9,500 units. So you are going to write by output, the output of process A, it will be transferred to process B account. By output transfer to process B account, the unit has been given, it is how much? It is 9,500. Now we have posted everything which has been provided in the question. Now what we have to do? We will be first closing the unit column. The unit column on the debit side, it is 10,000. On the credit side, it is 9,800. Debit side, unit column, it is coming as how much? It is coming as 10,000, and credit side the total is coming as 9,800. So debit side is greater than credit side. So we need 200 to balance the credit side.
which will be transferred to abnormal loss. This I have already taught, but still I am repeating how this 200 amount you will get. The input introduced in process A is how much? It is 10,000 units. Out of 10,000 units, what you are losing 300 units as normal loss. That is, the input is 10,000 and the normal loss is 300. तो आपका बचना कितना चाहिए था? आपका बचना चाहिए था 9,700 units. That is the output which should have been transferred to process B account. It should have been how much? It should have been 9,700. But the output which you are transferring is how much? It is 9,500. That is 200 units are still missing. So any loss which is above normal loss is what? It is abnormal loss. So you are going to write 200 units as abnormal loss. Now we have closed the unit column. Now it is the time to calculate the amount of abnormal loss. We have already, the balancing figure is what? The balancing figure is abnormal loss. That is 200 unit is your balancing figure of unit column. So it is what? It is abnormal loss. Now we have to calculate the amount of abnormal loss. See, I have calculated. I have written over here. 200 is what? 200 is the balancing figure, and it is what? It is abnormal loss. Now what we have to do? We have to calculate the amount of abnormal loss. The formula is total amount debit side minus normal loss in rupees divided by total unit debit side minus normal loss unit into abnormal loss in unit. This formula I have already shared. Again, I am showing it. Now what you have to calculate? The total of debit side amount column is 17,050, and what? 75 is your normal loss divided by 10,000 units minus 300 is what? Your normal loss in unit, and you have multiplied it with 200 units. This 200 unit is what? 200 unit is the balancing figure which you have got for abnormal loss. So the amount which you'll get will be how much? It will be 350. So we are going to write the amount 350 over there. Now we have calculated abnormal loss. Now it's the time to close the amount column. When you close the amount column, the debit side is coming as 17,050. From 17,050, we are going to deduct 75 and 350, that is 425. So the balancing figure will be 16,625. The balancing figure will be what? It will be 16,625. So this is what? This is the balancing figure. And I'm marking star for the value which I have calculated. We have calculated 75 and 350, and 16,625 is what? It is balancing figure, and this 200 is also balancing figure. Rest information which I have written on the board, it is given in the question. So this is process A. Now we will be making process B. Moving to the next process, that is process B. In process B, what we have to do, first thing which we are going to write in process B is the input, and the input, it will come from process A. By output transfer to process B, मतलब ये कहाँ आएगा? ये हमारे process में आएगा. कितना amount आएगा? Now the amount which will come will be, it will be 9,500, and the amount is how much? It is 16,625. To input from process A. कितना input आ गया? Input आ गया हमारा 16,625. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है material, labor, direct expense, which I am going to copy it from the question. It is 1,500. 1,500 is material, 8,000 is labor, and direct expense is 1,188. अब इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, in the question it is given that normal loss is 5%. Normal loss is how much? It is given in the question. Normal loss for process B is how much? It is 5%. It is given in the question that the normal loss for process B is how much? It is 5%. So we are going to calculate by normal loss. It is 5% of input.
5% of input means what? It will be 5% of 9500. So we are going to calculate 5% of 95. It will come as 475. 5% of 9500 is how much? It is 475. So we'll be writing 475. अब क्वेश्चन में दिया है कि प्रोसेस बी का जो नॉर्मल लॉस है इट इज बीइंग सोल्ड एज स्क्रैप. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन प्रोसेस बी का जो नॉर्मल लॉस है इट इज बीइंग सोल्ड एज स्क्रैप. And what amount you are getting by selling it at scrap? The amount which is mentioned is how much? It is 50 पैसे per unit. मतलब एक यूनिट के लिए आपको स्क्रैप में कितना मिल रहा है? 50 पैसे मिल रहा है. तो आपका लॉस कितना है? It is 475. So it will be how much? It will be 475 into 50 पैसे. It will be how much? It will be 475 into 50 पैसे. So you will get 237.50. आपका आ रहा है 237.50, but you are not going to write 237.50. What you have to do, you have to round it off to the nearest rupee. So when you are going to round it off, the amount which will come will be 238. So it is how much? 238. अब क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है output has been given. The output of process B given in the question is the output is how much? It is 9100. That is process B का आपका output कितना हो रहा है? 9100. So you are going to write by output transferred to process C. It is how much? It is 9100. अब हम क्या करने वाले हैं? We are going to close the unit column. जब आप unit column को close करोगे तो क्वेश्चन में देखना, सॉल्यूशन में देखो आप जो मैंने बोर्ड पे लिखा है. The debit side is how much? The debit side, that is the input to process B is how much? 9500. और आप जब टोटल करोगे 475 और 9100 को तो टोटल इज कमिंग एज 9575. मतलब क्या हुआ कि आपका इनपुट कितना था? आपने इनपुट डाला था 9500, उसमें से आपको लॉस हो गया. कितना लॉस हो गया? 475. इसका मतलब नेक्स्ट प्रोसेस में जाना कितना चाहिए था? नेक्स्ट प्रोसेस में जाना चाहिए था एज आउटपुट 9025. द इनपुट वाज 9500. The loss is how much? The loss is 475 of process B. So to the next output, to the next process, the output should have been how much? 9025. But the output which we are transferring to process B, process C is how much? It is 9100. 75 extra कहाँ से आ गया? जो 75 extra आया, that is abnormal gain. Abnormal gain को हम लिखते हैं on the debit side. So we are going to write it on the debit side. This is abnormal gain account. So now we are going to close the unit column. It will be 9575 and this is also 9575. Unit column हम close कर लिए. Now it is the time to calculate the amount of abnormal gain. Abnormal gain का formula भी same ही होता है जो abnormal loss के लिए होता है. That is you are going to use the same formula for abnormal gain and abnormal loss. It will be one and the same. I'll show how to calculate abnormal loss. Sorry, abnormal gain. See, it is given on the debit side. Unit is how much? 9500. 475 is your normal loss. Output is 9100. तो आपका credit side कितना आ रहा है? 9575 आ रहा है. और आपका डेबिट साइड कितना आ रहा है? डेबिट साइड आपका कम है. सो यू नीड अ बैलेंसिंग फिगर. हाउ मच? द बैलेंसिंग फिगर विच यू नीड इज हाउ मच? इट इज 75. अब फॉर्मूला वो सेम ही रहेगा अब नॉर्मल गेन के लिए भी. दैट इज टोटल अमाउंट डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लॉस इन रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट डेबिट साइड माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट इनटू द ओनली डिफरेंस विल बी हियर. इट विल बी abnormal gain in unit. वहां पे हम क्या करते थे? इन केस ऑफ अबनॉर्मल लॉस हम क्या करते थे? अबनॉर्मल लॉस इन यूनिट लिखते थे. अबनॉर्मल गेन में हम क्या लिखने वाले? अबनॉर्मल गेन में हम लिखने वाले अबनॉर्मल गेन इन यूनिट. सो अबनॉर्मल गेन इन यूनिट इज हाउ मच? इट इज वी हैव कैलकुलेटेड. इट इज कमिंग एज हाउ मच? इट इज कमिंग एज 75 रुपीज. सो फॉर्मूला आप लगा दोगे तो आपका अबनॉर्मल गेन विल कम एज 225 which we are going to write it on the debit side. That is 225. अब आप इसको टोटल करोगे and you will calculate. You are going to close the amount column also. We have already closed the unit column. Now it is the time to close the
amount column. The balancing figure will be 27,300. The balancing figure will be how much? It will be 27,300. So if you people have any doubt, chat box में आप मुझसे question पूछ सकते हो. And for today, what I have done, I have already calculated. I have already prepared process C account, because I think you people will not have much of difficulty in calculating process C account. You can see the calculation on the board. Process C. The input is what? To input from process B. From process B, the input is how much, which we have calculated in process B account. The input is how much? Input is 9100 unit. This unit we are getting it from process B, and 27,300 was the balancing figure of process B. To material is 500 given in the question. Labor is 6500. Direct expenses 2900. 2009. And in the question it was given normal loss is how much? Normal loss is 8%. Process C में आपका दिया हुआ है कि normal loss कितना है? Normal loss is 8%. 8% is given. It is over here. It is 8%, and it is being sold at ₹1. So 8% of input. 8% of input is how much? Input is 9100. So 8% of 9100 is coming as 728. एक यूनिट को आप सेल कर रहे हो ₹1 पे, तो 728 को सेल करोगे कितने पे? 728 रुपीस आपको मिलेगा. Now output given in the question is that the output of process C is 8100. अब आपका ये 272 क्या आ जाएगा? This is abnormal loss. Abnormal loss is balancing figure. How we have calculated? First you have to total the unit column of debit side. उसमें से आप माइनस क्या करोगे? उसमें से आप माइनस करोगे क्रेडिट साइड का यूनिट कॉलम. दैट इज डेबिट साइड का यूनिट कॉलम आपका कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन एज 9100. एंड ऑन द क्रेडिट साइड the amount which is given on the credit side, it is for normal loss, it is 728. It is given as 728. I'll show it. See, on the debit side it is 9100. On the credit side normal loss is 728 and the output is 8100. तो आप जब टोटल करोगे तो 9100 ज्यादा आएगा. So this is the balancing figure. That is 272 is your abnormal loss. It is what? It is balancing figure. After that, what you have done, you have calculated the amount of abnormal loss using the same formula. Total of debit side minus normal loss in rupees divided by total debit unit minus normal loss in unit. और इसको आप मल्टीप्लाई किया abnormal loss के यूनिट से. प्रोसेस 3 में आपका abnormal loss कितना आ रहा है? इट इज कमिंग एज 272. तो आपने लिख लिया 272 और आपका फाइनल अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट इज 1156. 1156 is your amount of abnormal loss. Now we have done process A, process B and process C. तीनों प्रोसेस कर लिया. Now it is the time to calculate. Now it's the time to prepare abnormal gain and abnormal loss account. Now I'm going to teach how to prepare abnormal gain and abnormal loss account. The format will remain the same. That is particular unit amount for abnormal gain and abnormal loss account. So abnormal loss account. Abnormal loss is also called abnormal wastage account. Either you can write abnormal loss or you can write abnormal wastage. It will be one and the same thing. Particular unit amount, particular unit amount. अब आपको जब abnormal loss और abnormal gain बनाना है अकाउंट, तो आपको चेक करना होगा कि किस प्रोसेस में आपको abnormal loss हुआ है. ये आप लोगों के लिए नया है. इसमें abnormal loss जब आप बनाओगे तो आप देखोगे कि किस प्रोसेस में आपको abnormal loss हुआ है और किस प्रोसेस में आपको abnormal gain हुआ है. तो सबसे पहले आप देखोगे प्रोसेस ए में 3 प्रोसेस है. 3 प्रोसेस में प्रोसेस ए में आपको abnormal loss हुआ है और प्रोसेस सी में abnormal loss हुआ है. तो लॉस को हम क्या करते हैं? लॉस हो या abnormal loss, दोनों को हम क्या करते हैं? दोनों को हम डेबिट करते हैं. So the entry for abnormal loss will be what? Abnormal loss account debit to process A account.
एक प्रोसेस ए में हो रहा है हमें लॉस, और एक कहाँ हो रहा है, प्रोसेस बी में। तो प्रोसेस सी में, तो आप फिर लिखोगे अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस सी अकाउंट। अब दोनों प्रोसेस के अमाउंट को मैं देख लेती हूँ। प्रोसेस ए में आपका जो अबनॉर्मल लॉस आया है कैलकुलेट करने पे, अबनॉर्मल लॉस आया है कितना, 350 आया है। अबनॉर्मल लॉस इज 350 एंड 350। प्रोसेस सी में हमने जो अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया था वो था 1156। इट इज हाउ मच, इट इज 1156। अब हमें क्या करना है, हमने एंट्री पास कर लिया, आई होप इट इज विजिबल। अबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला एंट्री मैंने पास किया। अबनॉर्मल लॉस को हमने यहाँ डेबिट क्यों किया है, ऑल द लॉसेस आर व्हाट, ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड। तो आपने क्या किया, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, और ये अबनॉर्मल लॉस 350 रुपीज का क्यों हो रहा है, प्रोसेस ए के कारण हो रहा है। और इस केस में अबनॉर्मल लॉस कितना है, 1156, और किसके कारण हो रहा है, प्रोसेस सी के कारण। So the formula is the entry is abnormal loss account debit to process C. अब आपको क्या करना है, ये जर्नल एंट्री जो आपने पास की है, आपको इसको पोस्ट करना है किसमें, लेजर में। अब ये लेजर का नाम क्या है, abnormal loss, और इट इज ऑल्सो abnormal wastage account। यहाँ पे क्या है, डेबिट कितने से हुआ है, 350 से। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फिल द अमाउंट कॉलम 350। अब ये 350 किसके कारण आया है, ये 350 आया है प्रोसेस ए के कारण। सो यू आर गोइंग टू राइट टू प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस डेबिट हुआ है कितने से, 1156 से। सो यू आर गोइंग टू राइट 1156। अब ये 1156 किसके कारण हुआ है, अबनॉर्मल लॉस के कारण हुआ है, तो सॉरी प्रोसेस सी के कारण हुआ है। सो प्रोसेस सी अकाउंट आपने ये लिख लिया, दैट इज यू हैव पोस्टेड। नाउ the in unit the abnormal loss for process A is how much, it is 200 unit, और process C में कितना है, it is 272। अब हमने ये फिल कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि कितना कितना अमाउंट आपके लॉस का होगा। इस अबनॉर्मल लॉस को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो पोस्ट करना था हमने पोस्ट कर दिया है। अब हमें देखना है कि अबनॉर्मल लॉस जो हमारा प्रोसेस ए में है वो कितना हो रहा है। प्रोसेस ए में हमारा अबनॉर्मल लॉस हो रहा है 200 यूनिट्स, और प्रोसेस सी में कितना हो रहा है 272 यूनिट्स। और क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि अबनॉर्मल लॉस जो है, नॉर्मल लॉस प्रोसेस ए का दिया हुआ है। प्रोसेस ए का दिया है कि नॉर्मल लॉस आप मार्केट में बेचते हो एज स्क्रैप, तो आपको कितना मिल रहा है, आपको मिल रहा है 25 पैसे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अब नॉर्मल लॉस आपका प्रोसेस ए में कितना मिल रहा है, 25 पैसे मिल रहा है। प्रोसेस बी में कितना मिल रहा है, 1 रुपए में मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो अब नॉर्मल लॉस हो रहा है उसको भी आप एज स्क्रैप सेल कर दोगे। सी देयर आर टू ऑप्शंस, इधर आप उस अबनॉर्मल लॉस दैट इज जो डिफेक्टिव सामान बन गया है उसको अपने पास रख लो और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इफ यू आर गोइंग टू कीप इट विथ योरसेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी अमाउंट, दैट इज आप उसको नहीं बेचोगे मार्केट में एज स्क्रैप ऑल्सो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन है कि आप मार्केट में उसे सेल कर दो, आपको भले कोई भी रेट मिल जाए। दैट इज इस केस में कितना मिल रहा है, 25 पैसा मिल रहा है। आपके पास कितना यूनिट है, आपके पास 200 यूनिट है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को, दैट इज ये जो डिफेक्टिव सामान 200 यूनिट बना है, इसको अपने वेयर हाउस में ऐसे ही रहने दो इन अ डिफेक्टिव फॉर्म। द फर्स्ट ऑप्शन इज दिस। द सेकंड ऑप्शन इज कि चलो आपको 25 पैसे, मैं आकर बोलती चलो मैं आपको इसके लिए 25 पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो आप बोलोगे ओके मैम आप मुझे इसके लिए कितना दे दो, आप मेरे को इसके लिए 25 पैसे दे दो। तो इसमें यहाँ पे लिखते हैं बाय सेल ऑफ स्क्रैप, मतलब ये जो अबनॉर्मल लॉस 200 यूनिट है इसको भी हम सेल कर देंगे एज व्हाट, एज स्क्रैप। और कितना मिल रहा है, मुझे इसमें मिल रहा है 25 पैसे मिल रहा है। तो 25 पैसे दैट इज 200 इंटू 25 पैसे। 200 इंटू 25 कितना हुआ, 200 इंटू 25 पैसे इज हाउ मच, इट विल कम एज 50। सो दिस इज 50। आपने इसे क्या किया, आपने इसे सेल कर दिया। अब ये किस प्रोसेस का है, राइट इट ओवर हियर, इट इज प्रोसेस A 200 units, process B
इट इज हाउ मच, इट इज 272. प्रोसेस ए में कितना आया, 200 इंटू 25 पैसे, दैट इज 50. दिस इज हाउ मच, दिस इज 50. आपको प्रोसेस ए से मिल जा रहा है 50. अब आपको इसी तरह क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एबनॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है, किसके लिए, फॉर सी यू हैव टू कैलकुलेट. सी में कह रहा है, प्रोसेस सी में आपको एक यूनिट के लिए कितना मिल रहा है, एक यूनिट के लिए आपको प्रोसेस सी में 1 रुपए मिला है. इट इज मेंशन ओवर हियर. प्रोसेस सी में आप अगर एज स्क्रैप सेल कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, 1 रुपी मिल रहा है. तो 272 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 272. इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. अब नॉर्मल लॉस मतलब होता है कि प्रोसेस में, दैट इज प्रोडक्शन प्रोसेस, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो सामान का, तो उस प्रोडक्शन में आपका जो सामान बन रहा है वो डिफेक्टिव फॉर्म में बन रहा है, दैट इज इट इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड, वो डिफेक्टिव हो गया. अब जब डिफेक्टिव हो गया तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको डिफेक्टिव फॉर्म में अपने पास रख लो, या फिर उसको एज ए कबाड़ी, एज ए स्क्रैप यू सेल इट ऑफ. तो आप जब प्रोसेस ए में सेल कर रहे हो तो आपको 25 पैसे मिल रहा है. सो 200 इंटू 25 पैसे इज 50 एंड प्रोसेस सी में आपको 1 रुपए मिल रहा है. आपका लॉस ऐसे आप नहीं सेल करते तो आपका लॉस कितना होता, आपका लॉस होता 1506 रुपए. लॉस कितना होता आपका, लॉस 1506 रुपए होता. लेकिन 1506 रुपए में आपने कुछ पैसे को रिकवर कर लिया. आपने क्या रिकवर कर लिया, आपने 50 रुपीज रिकवर कर लिया, और आपने क्या रिकवर कर लिया, 50 रुपीज, एंड यू हैव रिकवर्ड 272 रुपीज. मतलब अब आपका लॉस कितना हो रहा है, 1184. 1506 रुपए में आपने 1506 रुपए में आपने रिकवर कितना कर लिया, 322. So this 118 is the balancing figure and it will be transferred to P&L account. P&L account. So we have closed this also. This is 472. This 1184 is what? 1184 is your balancing figure. So this is the loss. नॉर्मल केस में आपका लॉस कितना होता, 1506 रुपए का लॉस होता. लेकिन आपका अब लॉस कितना हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है 1184 का. So the loss which is 1184, it will be transferred to P&L account. So this is the balancing figure. ये हमारा हो गया abnormal loss account. अब हम बनाएंगे abnormal gain account. हमें चेक करना है कि abnormal gain हमें किस प्रोसेस में हो रहा है. If there is any doubt, you people can write in the chat box. चलेगा? Okay. Now we'll be moving to abnormal gain account. Abnormal gain में भी the format will remain the same. क्योंकि आप जब भी अकाउंट बनाते हो तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट लिखना होता है, या फिर लिखना होता है पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट. Now we'll be making abnormal wastage account. Sorry, abnormal gain account. abnormal gain को हम abnormal effectiveness भी बोलते हैं. abnormal gain को हम abnormal effectiveness भी बोलते हैं. ठीक है. अब हम चेक करेंगे, सिर्फ एक प्रोसेस है, दैट इज प्रोसेस बी है, जिसमें हमें abnormal gain हो रहा है. और प्रोसेस बी में हमें abnormal gain कितने का हो रहा है, प्रोसेस बी में हमें abnormal gain हो रहा है कितने यूनिट का, 75 यूनिट्स का. सी इन द क्वेश्चन प्रोसेस बी में क्या हो रहा है, प्रोसेस बी में हमें abnormal gain कितने का हो रहा है, 75 यूनिट्स का हो रहा है. और वो 75 यूनिट्स अमाउंट कितना दे रहा है, 225. तो गेन को जब एंट्री पास करते हैं तो गेन के केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं, ऑल द गेन्स आर क्रेडिटेड. सो वी आर गोइंग टू राइट प्रोसेस बी अकाउंट टू abnormal gain account. abnormal gain, सारे गेन या प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट करते हैं. अब हमारा अमाउंट कितना देख लेते हैं. अमाउंट है इट इज 225. अब abnormal gain एंट्री में क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है. अब इसे हमें पोस्ट करना है लेजर में, दैट इज अकाउंट में. तो यहाँ पे abnormal gain क्रेडिट हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट. प्रोसेस बी अकाउंट के कारण कितना हमारा abnormal gain यूनिट में 75 है, एंड अमाउंट इज हाउ मच, अमाउंट इज 225. ठीक है. अब हमने लिख लिया. अब करना क्या है, अब मैं आप लोगों को ये जो abnormal gain का कॉन्सेप्ट है उसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ.
जैसे मान लो आपके पास किसी एक प्रोसेस में आपको 5 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, ठीक है, और 5 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, और उसी प्रोसेस में 5 नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस का मतलब होता है आप सामान बनाओ या मैं सामान बनाऊं, 5 यूनिट खराब होगा ही होगा, ठीक है। तो आपने एक सामान बनाया किसी प्रोसेस में और आपको 5 यूनिट्स का लॉस हो गया, और जब आपने पूरा वो प्रोसेस कंप्लीट किया तो आपने देखा 2 यूनिट आपको फायदा भी हो जा रहा है, दैट इज गेन भी हो जा रहा है। सेम प्रोसेस में एक नॉर्मल लॉस हो रहा है 5 यूनिट का, और गेन हो रहा है आपको 2 यूनिट का। अब ये 2 यूनिट जो गेन हो रहा है, आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आपको ये 2 यूनिट कहीं से मिल जाएगा बनाते हुए। तो जो ये 2 यूनिट है, इसको आप क्या करोगे? अपने नॉर्मल लॉस को नलीफाई करने में, दैट इज आपका जो नॉर्मल लॉस 5 यूनिट का था, इस 5 यूनिट के लॉस को आप क्या चाहोगे? ये 5 यूनिट का लॉस कुछ कम हो जाए, जो नॉर्मल लॉस है। तो ये जो 2 यूनिट आपका अब नॉर्मल गेन है, उससे आप क्या करोगे? अपने नॉर्मल लॉस को कम करोगे। तो नॉर्मल लॉस अब कितना बच गया? 3 यूनिट। यही एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अब नॉर्मल गेन, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोसेस बी अकाउंट में, आपका अब नॉर्मल लॉस कितना था? देखो, आप लोगों का नॉर्मल लॉस था 475। जब आपने प्रोडक्शन प्रोसेस किया प्रोसेस बी का, तो आपने देखा कितना लॉस दिया हुआ है, आपका नॉर्मल लॉस आया 475। जब आपने प्रोडक्शन कर लिया तो आपने देखा कि अरे मुझे 75 यूनिट्स और मिल गए, तो आप क्या करोगे? 475 में से 75 यूनिट्स को कट कर दोगे, तो आपका लॉस बच कितना जाएगा? 400। अब आप क्या करोगे इसके लिए? यू आर गोइंग टू राइट टू नॉर्मल लॉस, दैट इज आप नॉर्मल लॉस को खत्म कर रहे हो। कितना यूनिट हुआ? 75। और प्रोसेस बी में एक यूनिट का रेट कितना है? प्रोसेस बी में क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल लॉस के एक यूनिट का रेट इज हाउ मच? इट इज गिवन एज 50 पैसे। इट इज गिवन एज 50 पैसे। तो आपको कितना रुपए मिल जाएगा? 50 पैसे ऑफ 30, ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 37.50। आई एम रिपीटिंग अगेन, आप अब नॉर्मल गेन के अमाउंट को यूज कर रहे हो टू नलिफाई द नॉर्मल लॉस। पूरा 475 तो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, लेकिन 475 में आप कौन से पोर्शन को राइट ऑफ कर रहे हो? 75 यूनिट्स को राइट ऑफ कर रहे हो। तो 75 यूनिट्स को जो राइट ऑफ कर रहे हो, तो उसमें स्क्रैप का वैल्यू कितना था? 50 पैसे। तो 75 इंटू 50 पैसे इज 37 रुपीज 50 पैसे। आप इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आफ्टर राइटिंग यू आर गोइंग टू क्लोज द अकाउंट। This is 75, this is 75, this is 225, 225 में आप लेस करोगे तो this will be 187 and this will be transferred to P&L account. This is the balancing figure. We are done with the question. If there is any doubt, you people can ask. एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। अब नॉर्मल लॉस के केस में क्या करते हो? अब नॉर्मल लॉस का जो यूनिट होता है, अब नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका कोई यूनिट डिफेक्टिव हो गया है। अब उस डिफेक्टिव यूनिट के लिए कोई भी आपको मार्केट में प्रॉपर रेट नहीं देगा, दैट इज जो पैसा मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आप उसको कुछ नहीं करो, दैट इज टोटल लॉस बना करके रख लो अपने पास, या आपके पास ऑप्शन है कि उसको एज स्क्रैप मार्केट में बेच दो। तो अब नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स है उसे हम एज स्क्रैप सेल कर देंगे, ताकि हमारा जो लॉस यहाँ पे था वो कम हो जाए। दैट इज जो लॉस हमारा बहुत बड़ा अमाउंट का लॉस है उसको थोड़ा कम कर दे। अब नॉर्मल गेन में क्या करते हैं? अब नॉर्मल गेन में जो हमें फायदा हो गया, उस फायदे वाले यूनिट को हम यूज करेंगे अपने नॉर्मल लॉस को कम करने में। तो इस क्वेश्चन में हमारा नॉर्मल लॉस कितना था? हमारा नॉर्मल लॉस था 475 यूनिट्स, अब नॉर्मल गेन था 75 यूनिट्स। तो अब हमारा नॉर्मल लॉस कितना बच गया? जब हम 475 यूनिट से 75 यूनिट्स को राइट ऑफ करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 400 यूनिट।